Please respond to me. Question 1, July 29, 2022. अरे As I did tell you in the class as well for the Sulbagan batch. Maybe this is a typing error, which was there in the real exam as well, because I looked at different sources and eventually everywhere, I saw it like gamma methyl only. Gamma ethyl would have been a better option, a better statement. Still people are joining. So please go ahead, tell me. Question 1, what is the right answer? Gamma methyl cyclohexane carbaldehyde. Yes, please. I repeat, gamma ethyl would have been a better option. I think it's pretty visible to all of you. Yes. ऑप्शन ए, ये जो कार्बाल्डिहाइड होता है ना, कार्बाल्डिहाइड जो होता है ना, दिस कार्बाल्डिहाइड इज राइट अवे फॉर CHO as a terminal group attached to a ring or taken as a substituent. So this is when I take it as a cyclohexane carbaldehyde, but again for this to be a carbaldehyde it needs to be directly attached to the ring. So directly attached to the ring तो सिर्फ ये और ये है. अब ये अल्फा बीटा है और ये अल्फा बीटा गामा है. ये गामा इथाइल होने से दिस वुड हैव बीन एब्सोल्युटली राइट, बट ये टाइपो है जो कि मेरे को लगता है रियल एग्जाम में भी था. ए इसका राइट आंसर है इन ऑल द सोर्सेज इंक्लूडिंग एनटीए. विल वांट टू मूव टू क्वेश्चन 2. प्लीज टेल मी व्हाट्स योर आंसर टू क्वेश्चन 2. Option A. This will become CHO. This will become CHO. You can also tell me your name. Diisobutyl aluminum hydride is there in NCERT and discussed in the class as well. CH2, CH2, CHO. This will also become CHO. 2A अगर looks all right. बच्चे लोग अपना नाम भी बताते जाओ. कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे. Which of the following does not represent the correct combination of substance and product under the given condition? So question 3 we have to find which is not correct. Question 3 you have to find which is not correct. Quickly. 3D. Option D. option D. Why is it not correct? Why is it not correct? Why is it not correct? This is the correct answer, which is not correct. It is incorrect because It will form carboxylic acid because it is a strong Naturally. oxidizing agent. plus 6 में है सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड. ये COOH बन जाएगा, CHO पे रुकेगा नहीं, ये COOH बन जाएगा. बाकी सब ठीक ही लग रहा है. क्वेश्चन 4 का बात करेंगे. Which of the following will yield benzaldehyde as a product? 4C. C. A looks good because this will become COCl and then this is Rosenmund. So A looks good. CrO3 के साथ में again the same problem, it will become COOH. NaBH4 will not react with an ester. And this is a method which is given in NCERT. This is important. With CrO3 and acetic anhydride and with CrO2Cl2, which is popularly called as Itard reaction. These are two reactions which are given in NCERT with chromic oxide and acetic anhydride as well as CrO2Cl2O, chromic क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन. ये दो तरीका दिया हुआ एनसीईआरटी में. ये दोनों तरीके से बेंजल्डिहाइड बनता है फ्रॉम टॉल्यूइन. A and D, C Calcutta. How many of you got C Calcutta right? Tell me your name. Pranali. Want to move on? Nandini. Pranali, Krishna. Nandini, कृष्णा. और भी लोग सही बोले होंगे. नाम बताने में इतना एप्रीहेंशन क्या है. क्वेश्चन 5 A to B. Please go ahead. Right answer is E. C for Calcutta. C. Calcutta. Calcutta looks good. C Calcutta looks good because to get this, you'll obviously need to have a 1-degree alcohol, which is obviously a case of anti-MR. ये एंटी-एमआर अल्कोहल करने के लिए हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए you'll need डाइबोरेन BH3 बोरोन हाइड्राइड डाइबोरेन. ये हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन के बाद में दिस इज PCC ऑक्सीडेशन, which is oxidizing an alcohol and limiting it to an aldehyde. 5C Calcutta. How many of you got C right? Question 6. Tell me your names. Swarnali. Vanshika. Nandini.
क्वेश्चन 6, किससे एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगा? ए। एक ही तरह का क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। यहाँ पर एसिटिक एसिड नहीं बनेगा बिकॉज सेम प्रॉब्लम है। +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड तक जाएगा। इस रिएक्शन का मैं एक नाम बताता हूँ। क्या नाम बताता हूँ मैं इसका? फैक्टर्स। ये नंदनी बोर्ड लग रहा है मेरे को। वैकर प्रोसेस। कॉपर भी नेचुरली इसको CH3 CH2 तक ही बनाएगा। डाइबल H इज वेरी वेरी कॉमन। 7, सी कैलकाटा। यस सर, ऑप्शन। ये थोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना अच्छा से देखना पड़ेगा, उतना से तो प्रिंटेड नहीं है। ये OTBU मतलब ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ये बल्की बेस है, और ये बल्की बेस क्या करेगा? ये एंटी सेडजेफ हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। ये बल्की बेस, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इससे निकलेगा, हाइड्रोजन इससे निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकालने का एंटी सेडजेफ बनेगा, और इससे जो एल्कीन बनेगा इट विल लुक लाइक दिस। इससे जो एल्कीन बनेगा इट विल लुक लाइक दिस। डबल बॉन्ड जो होगा वो टर्मिनल होगा, और नेचुरली इसका ओजोनोलिसिस करोगे, यहाँ पर जिंक नहीं है तो वो बन जाएगा एसिड, और ये बन जाएगा COH। आई गेस डी दिल्ली इज द राइट आंसर। हाउ मेनी यू गॉट डी दिल्ली राइट? प्लीज गो अहेड, टेल मी हाउ मेनी यू गॉट डी दिल्ली राइट? Yes, you all can hear me loud and clear. How many people got Delhi right? नाम बताओ। यही प्रॉब्लम है, इतना एप्रीहेंशन क्या है नाम बताने में। माय नेम इज डॉक्टर रितेश पांडे, यू कैन टेल मी योर नेम इफ यू गॉट इट राइट। वी वांट टू मूव एट अ फिर एक फास्टर डाउट पेस है। एंड वांट। हाँ, हाँ बोलो। सर, जो अब एल्किन जो फॉर्म हुआ हॉफमैन प्रोडक्ट, अगर उसको लाइक ओजोनोलिसिस करेंगे तो एसिड कैसे हो रहा है? एसिड इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर जिंक लेते तो फॉर्मल्डिहाइड बनता। हाँ सर। जिंक लेते तो ये आइसोब्यूटाइलडिहाइड बनता। हम्म। কিন্তু জিঙ্ক নেই, তাহলে H2O2 যেটা হবে সেটা অক্সিডাইজ করে অ্যাসিড করে দেবে, সেটাই তো अच्छा অক্সিডেটিভ अच्छा, ওজোন हाँ লেয়ার। हाँ सर। 8 करेक्ट मैच। 8C। सर एट ऑप्शन सी। सी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, सॉरी बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए ये तो हो गया तुम्हारा कोचाल्डिहाइड, ये हो गया तुम्हारा रोजेनमंड, और ये हो गया तुम्हारा स्टीफेन। पहला वाला हो गया, पहला रिएक्शन का नाम है कोचाल्डिहाइड, दूसरे वाला का नाम है स्टीफेन, तीसरे का नाम है रोजेनमंड। नाम भी पता होना चाहिए। 1R 2P और 3Q। ऑप्शन सी है क्या ये? यस सर। Obviously you can tell me your name if you got it right. स्वर्णाली। वंशिका। नंदिनी। मयंक। तेजल। कृष्णा। कृष्णा। ठीक, कलकत्ता 9 भी मैं क्लास में करा दिया था फूल बगान बैच में। हावड़ा वाले बच्चे बोलेंगे, फूल बगान के बच्चों को पता है 9 का आंसर, वो लोग भी बोल सकते हो। हावड़ा में मेरे को लगता है नहीं हुआ है ये। फूल बगान मतलब जेनिथ का बैच में हुआ है। somebody who's in Howrah batch or did not attend the class when I was solving it, can respond. Everybody from Howrah batch, and then someone like, all right. What is the right answer? सर ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ये डाइमिथाइल Option A। सल्फाइड इज एज गुड एज जिंक। डाइमिथाइल सल्फाइड इज एज गुड एज जिंक। ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस हो रहा है। ये लास्ट वाला स्टेप समझने का जरूरत है। ये एल्डोल हो रहा है, ये एल्डोल का डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है। अगर ये एल्डोल का डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है जो लास्ट कंपाउंड है, तो दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम this particular alpha beta hydroxy compound, and this must have come from the aldol of CHO 1 2 3 4 and then the CHO। तो ये एल्डोल का डिहाइड्रेशन हुआ जहां पर ये एल्डोल है, और ये एल्डोल ये डाइकार्बोनिल से आया होगा नेचुरली, जो ये नेगेटिव जाकर के इसके ऊपर में अटैक किया होगा। 1000 बार बात करा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 नंबर ड्रिंक बनेगा इससे।
तो बेसिकली ये आया कौन सा एल्कीन से, ओजोनोलिसिस करके कौन सा एल्कीन से आया, जो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड एल्कीन था, तो ये कौन सा एल्कीन का ओजोनोलिसिस से आया होगा, ओजोनोलिसिस विद डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड Ne2S, ये जिंक जैसा है, नेचुरली वो होगा साइक्लोहेक्सीन, ये आया होगा साइक्लोहेक्सीन से, और साइक्लोहेक्सीन कहां से आया होगा, साइक्लोहेक्सीन आया होगा अल्कोहलिक KOH ऑन साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, और साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड में ब्रोमिनेशन होगा अगर वो कंपाउंड ये होगा। 9 का ए, ये थोड़ा सा घर पे अच्छे से वापस समझ लेना, पर ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स विदिन रीच, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। 9A आगरा क्वेश्चन 10, फॉलोइंग रिएक्शन, वो कोई भी हो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो, जो भी हो, ये तो समझ में आता है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड आएगा वो पाई बॉन्ड ऐसा आएगा जो कि पहला वाला पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन करेगा, आप कुछ नहीं करना है, इसका रिडक्टिव ऑर्गेनाइज करना है, CHO 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 CH2 CH2 CHO, what I mean is butane 1,4 diol, and naturally this will be Glyoxal, which is the right answer in that case, A आ रहा है क्या, हाँ हाँ सर। 10 का A आ रहा है, sounds good। 11 please go ahead, tell me 11। ऑप्शन सी। सर बी। मतलब 11 में B और C में कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, मतलब SOCl2 जो होगा वो ये COOH को COCl करेगा, यहाँ पर एक AlCl3 जैसा होना चाहिए जो मिसिंग है, पर मेरे को फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ऐसा ही लगता है कि ये जो रिंग होगा, जो यहाँ पर OH होगा, और यहाँ पर जो फाइनली CH2OH से C डबल बॉन्ड OCl बनेगा, वो C डबल बॉन्ड OCl निकल करके पॉजिटिव जो होगा वो आकर के यहाँ पर इसका ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर देगा, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग ऑर्थो टू OH। तो ये तो मेरे को ए लग रहा है, मेरे को तो ये ए लग रहा है, सर मेरा भी ए आया है। हाँ मेरे को भी ए लग बी रहा है, यहाँ क्यों पर एक नहीं होगा ए, सर, बता सकते? सॉरी बी क्यों नहीं होगा सॉरी सर, इसका आंसर बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा, एक्चुअली बी भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका आंसर बी भी हो सकता है, बिकॉज यू नो यहाँ पर ए में ऑर्थो में लग रहा है, बी में पैरा में लग रहा है, यहाँ पर ए और बी दोनों ही होना चाहिए, मेजर मेरे को लगता है फिर बी लिखेंगे, तो ये मेरे को देखना होगा इसका क्या आंसर होगा, इसका एंट्री वाला क्या आंसर दिया, मेरे को ए तो इंस्टिंक्टिवली समझ में आ रहा था। हम्म, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पे, ये नेचुरली पहला ऑप्शन था तो मेरे को ठीक लग रहा था, बट नाउ आई रियलाइज कि बी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। बी स्टेरिकली ज्यादा फ्री होता है, पैरा पोजीशन पे जनरली ज्यादा स्टेबल होता है, ए और बी में आंसर इसका बी ही दिया हुआ है, मेरे को ना एक्चुअली ए नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी अबाउट इट, इसका बी ही ज्यादा करेक्ट होगा, ऑर्थो और पैरा में बी ही ज्यादा करेक्ट है, बी इसका आंसर दिया हुआ भी है एक सोर्स में, इसको एक बार चेक भी कर लेंगे, पर मेरे को बी ज्यादा करेक्ट लगता है, ये मेरे को लगता है यस बोला क्या, यस भी बोला क्या, वॉज इट यस सुरेखा, सर कृषर। कृषिव, कृषिव ठीक बोल रहा है, तो यस का आंसर बी दिया हुआ है, माई मिस्टेक, इसका आंसर बी ही है, और बी ऐसे भी ना ऑर्थो और पैरा में से पैरा कोई मेजर बोलते हैं हम लोग, स्टेरिकली फ्री है, वो एक्चुअली लेफ्ट साइड में दिया तो मैं लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ए कर दिया, बी इंडीड इज द राइट आंसर, मेजर यहाँ पर बी बोलेंगे, ऑर्थो और पैरा में पैरा कोई मेजर बोलेंगे। স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে। স্যার বি বলো। মানে তো তাহলে ওই উল্টো দিকে লাগবে নাকি রিং, ওই যে যেটা আছে
उल्टो दिखे लेके उनको माने की पैरा माने पैरा आर की पैरा तो अच्छा, बोलो अच्छा। पैरा माने की पैरा हम्म। पैरा 12 12 सर सी। ऑप्शन सी। 12 is simple 12 is simple 12 is simple, you know, this will give you a bromide. PBr3, PBr5, phosphorus halides will give you a halide. And naturally with alcoholic KOH, it will give you a pi bond, which will be in resonance with double bond. 12 is simple. 13. Now it's about carbonyl, which is the most reactive, which in this case is propanol. And obviously you will want this to be an excess for the rate to be more. So propanol as substrate and methanol is excess. 13C, this was also within reach. 13C Calcutta. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ हाँ सर। 14. सर बी। 14 again, I believe that, you know, formaldehyde is the most reactive and you'll want alcohol to be smaller for steric factors. So 14B looks good. How many of you got 14B right? Please tell me, name yourself. 14B. You will want the aldehyde to be more reactive. So ये तो पक्का है कि यहाँ पर आंसर बी और डी में से एक होगा और मिथेनॉल और टर्सरी ब्यूटेनॉल में I'll want this to be, you know, sterically more reactive. 14B Bombay looks all right. You remember when I talk about reactivity of carbonyls, I also talk about steric factors. It's not like I do not talk about steric factors. You remember every time I talk about reactivity of carbonyls, I do talk about, you know, sp2 becoming sp3. You remember this? I do talk about this, that, you know, steric factors would also be a factor because sp2 becomes sp3 in the overall addition reaction. So, you know, this needs to be very reactive where formaldehyde is the most reactive one. And naturally, you know, steric factors would mean that I want a smaller alcohol. ठीक ही ठाक है, बढ़िया क्वेश्चन है. 14B बॉम्बे सॉल्वेबल है, बच्चा लोग के लिए सिंपल क्वेश्चन है. 15 बोलो. 15 सी। सी। हमें इससे सिंपल तो हो नहीं सकता. ये सभी लोग बोला होगा. एक बार सब लोग अपना नाम बताओ यार. 250 बीटा एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रणाली। डाइबलेट. वंशिका। how many you got it right? सर कृष्ण। नहीं। नंदिनी, प्रणाली, वंशिका, ये 3 लोग नाम बोल रहे हैं. बाकी लोग को अपना नाम पढ़ने में पता नहीं क्या मिल रहा है. मत बताओ, आगे बढ़ेंगे. इतना टाइम भी नहीं है. KOH इसको OH बनाएगा, इसको फिर COOH बनाना होगा, फिर ये H2SO4 से इसको जाके रिंग में चिपका देना होगा. H2SO4 क्या करेगा, इसको यहाँ पर आकर रिंग में चिपका देगा. H+ आएगा, पानी निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये ऐसे आके चिपक जाएगा. फिर हाँ बोलते हैं यहाँ पे कोई झमेला नहीं है. और यहाँ पे बी केयरफुल. और पैरा में पैरा पे लगाएंगे. और पैरा में पैरा पे लगाएंगे. बोलो ए आ रहा है क्या आंसर? हाँ हाँ सर। सर। 17. 17. 17 ना थोड़ा सा ट्रिकी है. 17 थोड़ा सा ट्रिकी है because more often than not, you know, when you talk about cyclic ester undergoing AlCl3 के साथ में क्राफ्ट हम लोग ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ करके पॉजिटिव लगाते हैं. और ये पॉजिटिव जनरली हम लोग क्या करेंगे ना, OH और CH3 में आई बिलीव OH इज अ स्ट्रॉन्गर फील्ड, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर डायरेक्टिंग और मेटा पैरा ओरिएंटिंग तो यहाँ पर लगाएंगे. पर यहाँ पर क्या होता है ना, जब AlCl3 फेनॉल के साथ में रहता है तो यहाँ पे एक फैक्ट सुन लो. ये लोन पेयर ना इसके साथ में ऐसे कोऑर्डिनेट होकर के ऑक्सीजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये मेटा ओरिएंटिंग हो जाता है. ये थोड़ा सा समझ लो. AlCl3 ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ में ऐसे इंटरेक्ट करके इसको मेटा ओरिएंटिंग कर देता है. ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स जैसा बनता है जहां पर ये ऑक्सीजन के साथ में AlCl3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बनता है, जहां पर ये मेटा ओरिएंटिंग बन जाता है. और जब ये मेटा ओरिएंटिंग बन जाता है तो इसका मेटा और इसका पैरा ये एक साथ में काम करने लग जाते हैं. समझ में आ रहा है बच्चे लोग? हाँ सर। तो उस हिसाब से, यू नो, CH3 का पैरा और OH का मेटा के हिसाब से इसका फाइनल आंसर सी होगा. बी इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. बी इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. So many people will go with B because, you know, B is where you will find OH to be, you know, a more predominant para-orienting group. It's basically like acylation. This is basically after acylation only.
ये फिल्टर रिएक्शन का आसाइलेशन ही है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड रो जो है वो जाकर के वहां पे अटैक करेगा, H प्लस निकलेगा, वो OH बनेगा, उसके बाद में वो भी खत्म हो जाएगा जो भी है। पर इसका आंसर डी नहीं, इसका आंसर सी होगा, बिकॉज फेनोलिक ग्रुप AlCl3 के साथ में ऐसा मेटा ओरिएंटिंग हो जाता है। ये जान के रखो, ऐसा क्वेश्चन पहले जेई में नहीं आया है, थोड़ा परेशान करने वाला है। विल टॉक मोर अबाउट इट व्हेन द टाइम इज राइट। 18 is something which I did in the Fulbagan batch. Even people in the Howrah batch would have attempted it by now. Please go ahead. Remember, these are things which I am doing from the days of Markovnikov's rule. This is anti-MR without peroxide. This is anti-MR without peroxide. You remember this? এখানে ব্রোমিন এখানে লাগবে, এটা anti-MR হবে। ये सब मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, हाइड्रोकार्बन के टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पर अगर मान लो ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा जो ऑक्सीजन का नेक्स्ट पेयर होगा, ये लोन पेयर होने की वजह से रेजोनेंस से स्टेबल होगा, एंड दिस विल बी मोर स्टेबल देन अ मोर ब्रांच कार्बोकेटाइन। This will be more stable than a carbocation like this. This will be more stable than a carbocation like this. ये मैं बार बार बता चुका हूं। प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू रिलेट टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये 3 डिग्री है, पर यहाँ पर 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, ये 1 डिग्री होगा बिकॉज ये रेजोनेंस से स्टेबल है। और ये कार्बोकेटाइन बनेगा H प्लस का अटैक के बाद में, तो नेचुरली ब्रोमीन विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द कार्बन व्हिच इज हैविंग मोर हाइड्रोजन, एंड दिस इज anti-MR. In the process you get 2 chiral carbon and 4 according to 2 to the power 2 is the number of stereomers. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। I would have wanted more people to respond to it. Nevertheless, we'll want to move to question 19. How many of you got 19 right? Tell me a common answer. D. Please go ahead. 19D. D. 19D. How many of you got 19D right? It's as simple as it sounds. Yes, please. Sir Krishna. Nandini. Vanshika. आदित्य। वंशिका, कृषिव, नंदिनी और प्रणाली तो खैर सारा में जवाब दे रही है। प्रणाली मेरे को तीनों सेट का आंसर भेज चुकी है। प्रणाली is doing a good job. Thank you, sir. I obviously don't get an opportunity to check all the attempts, but you would have got maximum right. That would be the spirit. सारा काम खत्म करके पहले भेज दो. You can ask for more work. Sure, sir. So Swarnali is doing amazingly well. Krishna, Nandini, Vansika, is responding pretty well today, and others whom I'm, not able to name, will want to excuse me, but this is the way an online class is going to go. If you respond in the class, 20 question 20 ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में बहुत पहले पूछा था, 2023 में भी रिसेंटली है, 2023 में तो भी रिसेंटली है, ये मैं क्लास में करवाया हूँ सारा बैचेस में, इंडियन 1,2,3 डायोन, इससे निनिहाइड्रीन बनता है। पर ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आई टेल यू, ये क्वेश्चन जो है जहां पर ये बीच वाला OH बनता है और ये OH, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O दोनों के साथ में, इसको मैं निनिहाइड्रीन बोलता हूँ। आई कैन सेंड यू अ रिकॉर्डिंग ऑफ माइंड 15 years बैक, कि 15 साल पुराना जेई का प्रॉब्लम है, ये बहुत पुराना जेई का प्रॉब्लम है। डी दिल्ली, एवरीबडी वुड हैव गॉट इट राइट। हाँ सर। 20 डी दिल्ली, कम ऑन टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? 20 डी प्रणाली। दिल्ली। Sir Krishna. आदित्य। Vanshika. Sejal. Nandini. Sejal is also responding pretty well in the class today. 21 थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं एक बताऊं, मेरे को ना ये क्वेश्चन भी अच्छा ही लगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक रिंग बना देते हैं, हम लोग को लगता है यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सोचा करके यहाँ पर अटैक करा दो, पर एक 3 मेंबर रिंग बनने से अच्छा है कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में बना दो। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो है, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लो। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का फंडा यही है कि यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनाने की जगह तुम ये जो है नेगेटिव, इसको दूसरा मॉलिक्यूल से अटैक करा दो और वहां पर करो तो ऑप्शन डी आएगा। बात समझ में आ रहा है? बी में ना बहुत कंस्ट्रेंट रहेगा। दिस इज लाइक अ 3 मेंबर रिंग व्हिच इज नॉट वेरी स्टेबल। अगर डी जैसा ऑप्शन है तो आई वांट टू गो विद एन ऑप्शन लाइक डी, जहां पर ये वाला मॉलिक्यूल अटैच होकर के इससे OH बन जाएगा। यहाँ पर देखो तो ब्रांचिंग है,
ये 1 2 3 अगर ऐसा है तो ये 1 2 3 ऐसा है, 4 ये 4 जहां पर ब्रांचिंग है यहाँ पर बी आर लगा हुआ है। ठीक है बच्चे लोग, हाँ सर। हाउ मेनी यू गॉट डी राइट? स्वर्णाली। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था बट इट वाज आल्सो विद इन दी 22 जो है ना, ये क्वेश्चन ना बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछ चुका है वे बैक। ये 2023 का क्वेश्चन नहीं है, 15 साल पुराना 20 साल पुराना क्वेश्चन है ये जेई का। इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। अब स्क्वायरिक एसिड क्यों बोलते हैं उसका भी एक कारण है। ये स्क्वायर जैसा शेप है और यहाँ पर बिल्कुल सारा बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। ये जो OH है ये O माइनस बन जाएगा, ये जो OH है ये भी O माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर अगर ऐसे रेजोनेंस होने लग जाएगा, ये ऐसे रेजोनेट करेगा, यहाँ पर आएगा, ये भी रेजोनेट करेगा, तो सब जगह बराबर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। You know, this will be a case where you'll have equal and double bond character. All the bond lengths will be equal, and because all bond lengths will be equal, you can call it equal length. And it's not a rectangle. It's not a rectangulic acid. It's a squaric acid. सब जगह बराबर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और नेचुरली ये इसको उठा के यहाँ पे लाओगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, सब जगह बराबर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सब जगह O माइनस O माइनस O माइनस। तो इसका हाइब्रिड ऐसे ही दिखेगा। बच्चों को हाँ ना बोलो। हाँ Yes. सर। करेक्ट स्टेटमेंट। B is aromatic, which is true. Completion of above reaction is very slow, which is false. A shows automatism, which is true. Bond length of CC in compound we are found to be same, which is true. A, C, and D is right. How many of you got it right? A, C, and D is right. How many of you got it right? Nandini. Yes, please. नंदिनी का राइट है, और कौन बोला? Vanshika. ये नेगेटिव जाकर के वहां पर अटैक करेगा, है ना? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 मोल नहीं करेंगे, यहाँ पर इतना नहीं करेंगे, यहाँ पर विल नॉट गो सो क्रेजी के 2 मोल के बीच में करें। यहाँ पर मेरे को समझ में आता है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इज फेयरली स्टेबल, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इज वेरी स्टेबल। तो 23 का मेरे को लगता है सी आया होगा काफी लोग का, है ना? हाँ सर। 5 मेंबर और 7 मेंबर है, 5 मेंबर को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज 5 मेंबर इज मार्जिनली मोर स्टेबल देन 7 मेंबर। 23C Calcutta, how many of you got 23C Calcutta right? Nandini. Yes. 24 is a bad question. 24 is a bad question. जो मैं बोलता हूँ ना बेकार बदमाशी वाला क्वेश्चन एक है, ये खराब क्वेश्चन है। इसमें मैं जब तुम लोग को एक रिएक्शन बताया था, याद है? मैं तुम लोग को एक रिएक्शन बताया था टॉलेंस का जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो चलो हाँ ना बोलो। Yes, sir. हाँ सर। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये मैं तुम लोग को लिखवाया था कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है RCHU 2 मोल AgNH3 होल ट्वाइस के साथ में। और एक बार अपना नोट्स में से चेक करके बताना, यहाँ पे शायद 3OH माइनस था, ऐसा करके ये COO माइनस बनता था, याद है? और यहाँ पर मेरा 4 अमोनिया निकलता था, ऐसा था, देखो ऐसा था, मेरे को लगता है ऐसा रिएक्शन था, बाकी वाटर बनता था, है ना? तो 1 मोल से 4 मोल अमोनिया बनता था और एक COO माइनस बनता था, यस और नो? हाँ सर। ना अब ये जो एसिड बनेगा वो 1 मोल अमोनिया खा जाएगा, जो एसिड बनेगा वो 1 मोल अमोनिया खा जाएगा। यू विल हैव अ सॉल्ट फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड एसिड, so this will form COO minus NH4 plus। तो इफेक्टिवली इसका 1 मोल से जो अमोनिया बचेगा वो 3 मोल बचेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज देयर इन एनसीईआरटी एज वेल, ये मैं लिखवा भी दिया था। आई ऑल्सो टेल यू इट्स अ वेरी बैड क्वेश्चन, but you know the only way you can solve it is you can process all of this information in your mind. Not easy. ये यहाँ पर naturally 2 Ag is the precipitate which is the tolerance test. Now 131.8 kg of cyclohexane carbaldehyde. You have to find the mass of ammonia. So if 3 moles of ammonia, which is 17 to 351, comes from this C6H, this is C6H11CHO. पहले तो इसका molecular weight नहीं दिया है, इसका molecular weight क्या निकलता है बोलो तो बच्चे लोग?
साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट कोई निकाला है? 112. 131. 112. ये C6H11 है, तो ये हो गया 1272 प्लस 11, ये हो गया 83. ये है CHO 12 1 13 और 16 29. तो दिस इज 9 3 12 8 1 9 2 11. 112 है क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट? देखो तो बच्चे लोग, हाँ सर। तो 112 ग्राम से 51 ग्राम आएगा। इसका 112 ग्राम से 51 ग्राम आएगा, तो 131.8 ग्राम से द आंसर विल बी 131.8 131.8 अपॉन 112 इंटू 51, ये इसका आंसर होगा। द क्लोजेस्ट इंटीजर विल बी इन 60. केजीज। अब ये देख लो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मेरे को 60 का आंसर याद भी है। 60 कौन बोला? अभी नंदिनी बोली क्या? 60 कौन बोला? Yes, sir. सॉरी, Yes, sir, Nandini. और किसी का 60 है? नंदिनी 60 बोल रही है, मेरे को 60 का याद है शायद। सर एक थोड़ा बहुत डाउट है। कैलकुलेट सर प्लीज टेल मी। इक्वेशन में तो लाइक 4 NH3 है, तो व्हाई डिड यू टेक लाइक 3 moles of NH3? तो আমি আবার বলছি, দেখো, 1 mole ammonia, 1 mole ammonia will be consumed in the reaction with the COO minus. You know, this is an acid basically. With ammonia it will form COO minus NH4 plus. তাহলে 1 mole এখানে চলে যাবে, 3 moles will be left. But I don't know how many of you or how many of the students would have, this much of, focus in the real exam. Ideally, one के साथ में 4, maximum people will get 1 mole, 4 mole. 1 mole के साथ में 3 mole निकलता है। जेई में ये नहीं पूछा पहले, पर अभी ये पूछा है 2023 में। खराब क्वेश्चन है, पर 1 मोल वो जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? हाँ सर। 15 is very very bad. 15 is a very very bad question. मैं इसका आंसर 15 बता दे रहा हूँ, 25 सॉरी। मैं इसका आंसर 15 बता दे रहा हूँ, मेरे को याद है, पर ये मैं क्लास में कराऊंगा। ये बहुत झमेलिया क्वेश्चन है। लेट मी डू इट इन द क्लास इटसेल्फ। ये मैं क्लास में कराऊंगा। इसका आंसर 15 है। ओनली इफ somebody wants to know the right answer, it's 15. But this is like really bad question for a JEE means kind of an exam. Can't help. 26. Option D. Please go ahead. सर डी डेली। Now in 26, one way to go with it is, see, a simpler way to go with it is, you'll want to draw the corresponding enol. ये थोड़ा सा इसका आसान तरीका है। इसको ज्यादा स्टेबल इनोल होगा, वैसा होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ मोर स्टेबल एल्कीन। इसको अगर ऐसे इनोल समझ के ऐसे तोड़ोगे ना, तो दिस विल बी आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 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 COH। ये इसको करने का एक आसान तरीका है। बात समझ में आ रहा है मेरा? सी आ रहा है क्या? डी आ रहा है। ये तो नेचुरली इस रिएक्शन का नाम बताओ। वोल्फिकेशन। तो ये तो वोल्फ किस्नर है। ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड ओ को तुम्हारा रिड्यूस कर देगा। पर COH को रिड्यूस थोड़ी करता है, डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करता है, COH को थोड़ी रिड्यूस करता है। ठीक है, वो मान लो CHO बन जाएगा, तो CHO को रिड्यूस कर दो। तो COH को CO2 लेकर रिड्यूस, COH वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, COH वैसे ही रहेगा। वोल्फ किस्नर खाली कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा। ये और जूम आउट नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे लोग? ठीक है, डी राइट है, डी राइट है। ये छुपा हुआ था तो मेरे को दिख नहीं रहा था। डी राइट है। इसको आई टोल्ड यू आसान तरीका है इसको करने का। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका इनोल बना लेना, ज्यादा स्टेबल इनोल से, वहां पे तुम लोग ओजोन से जैसा कर लेना। क्वेश्चन 27। 2. 2 इज इट? नंदिनी अगेन। बाकी लोग अपना नाम बताओ। आदित्य। विशु। यहाँ पर 2 इसलिए है क्योंकि 1 मोल तो मेरे को यहाँ पर रिएक्ट करेगा, और दूसरा ये जो OH है ना, ये OH एक एसिडिक हाइड्रोजन जैसा है। ये पता होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो राइट अवे 1 मोल गिरना खा जाता है।
ये राइट अवे MEMGBr एक हाइड्रोजन को लेकर के मीथेन बना देगा। ये पहला बार से ही मैं बता रहा हूँ, 1 मोल यहाँ पर खर्चा हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये फिर भी OH ही लगा रहेगा, ये OH ही लगा रहेगा, बिकॉज जब ये Me मिथाइल बनेगा तो ये क्या बनेगा, OMGBr बनेगा, वो हाइड्रोलिसिस से वापस OH बन जाएगा। तो इस चक्कर में मत रहना कि ये OH इफेक्ट नहीं हुआ, ये OH इफेक्ट हुआ है, ये OMGBr बन के फिर हाइड्रोलाइज होकर OH हो गया, उसमें 1 मोल मिथाइल ब्रोमाइड लेकिन खा गया है, 1 मोल ग्रेनाइड लेकिन खा गया है। आई रिपीट, सम पीपल टेल मी कि सर ये तो OH का OH ही रह गया, नहीं, ये OH वाला जो था ये OMGBr बना, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का 1 मोल खा गया, 1 मोल खा करके जब ये OMGBr बना तो ये वापस OH बन गया, उसमें 1 मोल को खा गया, और ये पहले होगा, ये पहले होगा, उसके बाद ये होगा, ये बेसिक रिएक्शन है ग्रेडनेटर के एसिडिक हाइड्रोजन में, वो एल्केन बन जाता है। 1 मोल लगेगा यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर लगेगा, तो नेचुरली H इज इक्वल टू 2 टाइम्स Y। 28 C 28 एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मैं पहला दिन से हाइड्रोकार्बन में पढ़ाता हूँ। आई एम सो हैप्पी ये रियल जेईई एग्जाम में आने लग गया है, 15 साल पहले से मैं ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि वोल्फ किस्टनर तुम तब यूज मत करो जब यहाँ पर बेस सेंसिटिव ग्रुप हो। बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन सा होगा, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा, बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बेस क्या करेगा, Cl- को हटा देगा, और यहाँ पर नेचुरली एक पाई बॉन्ड भी आ सकता है, ये पाई बॉन्ड अगर आ जाता है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड इस साथ में रेजोनेट भी करेगा, सो दिस इज नॉट गुड फॉर वोल्फ केस्नर। यहाँ पर तुमको करना चाहिए था क्लीमेंसन रिडक्शन, बेस या न्यूक्लियोफाइल होने से Cl वाला हम लोग काम नहीं करेंगे, इट्स अ बैड मेथड फॉर वोल्फ केस्नर, यहाँ पे क्लीमेंसन करना चाहिए, so this is wrong, this is right, C is right, A is false but R is true। अरे वोल्फ केस्नर में तुम हाइड्रोक्साइड लेते हो भाई, हाइड्रोक्साइड लेते हो, हाइड्राजीन लेते हो, ये सब Cl को छोड़ेगा थोड़ी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, बच्चे लोग हाँ ना बोलो, ये पाई बॉन्ड नहीं आएगा, सॉरी पाई बॉन्ड नहीं आएगा बिकॉज वो रिड्यूस हो जाता है, बट डेफिनेटली ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इट्स अ बेस सेंसिटिव ग्रुप। प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर। सिमिलरली 29 इज ऑल्सो सिमिलर एग्जाम्पल, वेरी गुड कि ये पास पास में है, एक ही क्वेश्चन किताब में दोनों एक साथ में है। यहाँ पर वोल्फ किस्नर अच्छा, यहाँ पर क्लीमेंसन अच्छा नहीं है, यहाँ पे क्लीमेंसन नहीं करने का, यहाँ पे वोल्फ किस्नर करने का। क्यों वोल्फ किस्नर करने का, क्योंकि यहाँ पर OH है, ये एसिड सेंसिटिव है, ये जो OH है ये H के साथ में पाई बॉन्ड बना देगा, ये बन जाएगा रिंग CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, मान लो वो रिड्यूस भी हो गया, ये CH3 रिड्यूस भी हो गया, पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और इसका आंसर तो आंसर बी होगा, इसका आंसर तो बी ही होगा। यहाँ पर अगर तुमको डबल बॉन्ड नहीं चाहिए था, तुमको सिर्फ इसको रिड्यूस करना था, तो तुमको वोल्फ केस्नर करना चाहिए था, जो भी है यहाँ पर बी राइट आंसर है। आई थिंक आई एम बीइंग अंडरस्टूड, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। We'll want to move on. Question 30. यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज बी ओनली, बी बॉम्बे। हाउ मेनी यू गॉट इट राइट? So Krishan. Nandini. Aditya. 30. Vanshika. Sounds good, Vansika. Sounds good, Krisiv. 30. Quickly. C. जल्दी करो, खत्म कर दो। हाँ, Option C. D. सी मतलब डबल बॉन्ड ओ है कि डबल बॉन्ड है, ये क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है ना? वो डबल बॉन्ड ही लिख रहा है, मेरे को डबल बॉन्ड ओ तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक्चुअली वो डबल बॉन्ड ओ है क्या? CONH2। हम्म, यही होगा आंसर का, यही होगा। सी कौन बोल रहा है? नंदिनी तो सी बोल रही है क्या? Yes, sir. वहां पे डबल बॉन्ड ओ नहीं है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नहीं है, ये वही है, डबल बॉन्ड ही है, ये ओ थोड़ी है, ये CH2 ही है। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो यार, जल्दी बोलो। Okay, sir. ठीक है, बाकी लोग भी बोलते रहो। ए होगा, कितना लोग ए होगा बोल रहा है अभी? स्वर्णाली। 31।
फिनोलिक कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, NO2 वाला जो होगा वो सबसे एसिडिक होगा, तो E सबसे ज्यादा होगा और नेचुरली यहाँ पर B सबसे कम होगा। ए लग रहा है मेरे को ऑप्शन। हाउ मेनी यू गॉट ए राइट? प्लीज गो अहेड, टेल मी। कर्णाली। नंदिनी। त्रिशूल। 31 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो बात कर लेंगे, बहुत लंबा चलेगा क्लास, खत्म करते हैं यार, थोड़ा सा फास्ट हो जाना पड़ेगा। हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, रेड फास्फोरस ब्रोमीन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन NaOH आयोडीन, इटार्ट रिएक्शन डाइक्रोमाइल क्लोराइड, गैटरमैन कोर्स में ये होगा। आंसर बोलो 32 का बोलो। डी। 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 ये फटाफट बनाना होगा, 33 का थोड़ा बनाना पड़ेगा। 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन, 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन, ये फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन में यहाँ पर फिनाइल है, ये फिनाइल है, यही है ना। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ये ब्यूटेन 2 ओल में यहाँ पर 2 नंबर में मिथाइल है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, यहाँ पर मिथाइल है। 1 फिनाइल इथेनॉल, तो CH3 CHOH मिथेनॉल, मतलब यहीं पर है फिनाइल, 1 नंबर पर ही है। चलो ठीक है। 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, दो यहाँ पर डाइमिथाइल है। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, ये 1 फिनाइल है, यहाँ पर फिनाइल लगा दूंगा। कौन कौन सा देगा बोलो, जल्दी बोलो, 33 में बोलो कौन कौन सा देगा, बच्चे लोग बोलो, कितना लोग देगा। कम ऑन, ये मेरे को लगता है तो सब लोग कर लेगा। सर 4। टेक योर टाइम। 4 कौन बोल रहे हैं? सावन। सावन बबुआ, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, 4 राइट आंसर है, पर 4 कौन कौन सा बोलो। सर 3 4 5 6। 3 4 5 6, वेरी गुड। 3 4 5 6 4। आई वॉन्टेड मोर पीपल टू रिस्पॉन्ड टू इट। किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, मेरे से बोल सकता है, पूछ सकता है, पर मेरे को लगता है ये समझ में आ रहा है। 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन में वो कीटो मिथाइल नहीं बचता है, दूसरा वाला कंपाउंड नेचुरली 3 डिग्री है। 3 4 5 6 में यू हैव एन अल्कोहल, जहाँ पे you have an alcohol or you have a keto methyl group directly. Are you all happy with this? We'll want to move on. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। 34। थर्टी फोर इज अ नाइस प्रॉब्लम। 34 अच्छा प्रॉब्लम है। 34 में थोड़ा दिमाग लगता है। MEMGBr जो होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में, ये मैं बोलता हूँ कि MEMGBr में ये उठ करके यहाँ पर जाएगा और ये उठ करके यहाँ पर जाएगा। यस और नो? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। ये वहां जाएगा, ये वहां जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आकर के R माइनस अटैक करेगा। फिर जब ये उतरेगा यहाँ पर और ये जब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव N प्रोपाइल आयोडाइड के साथ में, ये नेगेटिव N प्रोपाइल आयोडाइड के साथ में ऐसे ये प्रोपाइल को यहाँ पर अटैक करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है जहां पर थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ABCD 4 ऑप्शन होने से उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, ABCD 4 ऑप्शन होने से उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। And please tell me, how many of you got A right? How many of you got A right for 34? How many of you got A right for 34? Please go ahead, tell me. सेजल बोल रही है, बाकी लोग एक बार ध्यान से सुन लो। ऐसा नहीं है, मैं ये बताया हूं, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होता है तो मान लो यहाँ पर अगर मेरे को RMGBr लगाना रहता है और हाइड्रोलिसिस करना रहता है, प्लीज टेल मी, ये मैं क्लास में बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? यहाँ पर ये आंसर होगा। 1 फॉर एडिशन में बताया कि नहीं बताया हूँ? प्लीज टेल मी। क्या होता है यहाँ पर, ये उठ करके यहाँ पर जाता है, ये उठ करके यहाँ पर जाता है, R वहां पर लगता है, तो यहाँ पर पहले क्या बनता है? यहाँ पर पहले ऐसे बनता है, यहाँ पर R लग जाता है। अरे हाँ ना बोलते रहो।
OMGBR OS बन जाता है, फिर ये ऑटोमराइज करके ऐसा हो जाता है। मैं ये तो बनाया हूँ ना 1 for addition, फिर हाँ नहीं बोलते हो। No, sir. पर यहाँ पर क्या है, NPRI भी दिया है, तो इसका भी एक रोल है ना। NPRI पहले समझ लो, NPRI क्या है, एन प्रोपाइल आयोडाइड। तो ये जब नेगेटिव यहाँ पर उतरेगा, जब ये नेगेटिव यहाँ पर उतरेगा, ये जब नेगेटिव यहाँ पर उतरेगा, ये जब नेगेटिव यहाँ पर उतरेगा, यार तो यहाँ पर लग गया, यहाँ पर पहले से एक मिथाइल था, एक नया मिथाइल लग गया जो MEMGBR किया है। अब जब भी यहाँ पर उतरेगा तो ये नेगेटिव यहाँ पर ही रहेगा, और ये नेगेटिव एन प्रोपाइल आयोडाइड से सब्स्टिट्यूशन कर देगा। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, उतना भी चैलेंजिंग नहीं था। इट वॉज विद इन रीच आई बिलीव। बच्चे हो हाँ ना बोलो। हाँ सर। अचानक मेरे को लग रहा है तुलवी का आवाज आया बीच में। I might be wrong, पर ये होना चाहिए था। Number of isomeric compounds with molecular formula seen in SNO which do not dissolve in NaOH, do not dissolve in HCl, do not be Borges precipitate with 2,4,3 hydrogen hydrogen compound with molecular seen in SPLO। ये सब लोग अटेम्प्ट किया है क्या? ये सर 2 होगा। ये तो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नंदिनी का ही आवाज है। और कोई बोल रहा है क्या? 2 नंदिनी, इसको कैसे सॉल्व किया जल्दी से बता दे तो। टाइम कब है? हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन हो आज का, बिकॉज इट्स सर ऑलरेडी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले निकाले तो 5 है, और अच्छा गिव, एक मिनट बोलती जा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 निकाली, फिर क्या की बोल? तो इसका मतलब एक फिनाइल ग्रुप होगा इसमें, और डू नॉट गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट पे 2,4-DNP से ईथर पता चल रहा है, तो प्रोबेबली यहाँ अच्छा पे सिर्फ एक। अच्छा, यहाँ पे मतलब कार्बोनिल नहीं है, नहीं। कार्बोनिल नहीं है ना। डिसॉल्व इन NaOH नहीं करता तो ये फेनोलिक नहीं है ना। यस सर। डू नॉट डिसॉल्व इन HCl मान ले, देख लेते हैं। और तो क्या मालूम चला 9 कार्बन कैसे बनाएगी? एक पीएच ग्रुप होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, और बाकी का इथर वाला ग्रुप होगा। तो डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ऐसा बनाइए क्या? यस सर। चलो, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एंड along other than Nandini, who else could solve it? Other than Nandini, who else could solve it? So this does not call for again. आई मीन एक्चुअली इट्स अ नाइस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नेचुरली और सोचने का तुमको मौका मिलेगा। जैसा बोली है लड़की, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 से एक रिंग तो मेरे को बनाना ही होगा, और एक रिंग बनाने के बाद में जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 ही जाता है तो वी आर ऑलवेज टेम्पटेड कि एक डबल बॉन्ड वो बना ले, एसिड बना ले, एल्डिहाइड कीटोन बना ले, पर एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना सकते, फिनोलिक ग्रुप भी नहीं है। तो ये सब कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और ये जो ईथर बोल रही है, ईथर इज द ओनली पॉसिबिलिटी। मेरे को एक ऑक्सीजन भी रखना है, अभी ऑक्सीजन को मेरे को रखना है जिसमें मेरे को फेनोलिक भी नहीं बनाना है और कार्बोनिल भी नहीं बनाना है। फिर एक अनसैचुरेशन और मेरे को चाहिए। यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है, इसका आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन है, मैं पता नहीं, डब्ल्यू बी ये जेई मेंस के लिए आउट ऑफ द ब्लू है, जहाँ पे मेरे को फटाफट फटाफट सारा क्वेश्चन करना रहता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। अच्छा क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आना बेटर है। मेंस में जहाँ पर टाइम फटाफट करना रहता है, तो आई थिंक इट्स लिटिल टू मच टू आस्क फॉर। Now I think we'll want to stop here. We'll take up the rest of the questions when I see you in the next class. Because it's been pretty lengthy session, and I would not want to go solving the rest of the questions in a हरम करम। ऐसा कुछ ऐसे, हालांकि ये बचा तो 6 ही क्वेश्चन है, एक बार आंसर सबका देख सकते हैं। 36 का आंसर को जल्दी बता देगा? 36 का आंसर जल्दी बताओ तो क्या है? ऑप्शन डी। 36 में ये NaHSO3 है, तो ये पहले इसका बाइसल्फाइड बनेगा, फिर हमको लगता है साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये थोड़ा सा देख लेना। 36G कितना लोग का आया बोलो, मैं आंसर खाली बताऊंगा। 36G कितना लोग का आया? 36G नंदिनी। स्वर्णाली, ऋषि, श्रवण, और कोई हाँ अटेम्प्ट किया सर, इसके डी बाद? है। हाँ सर, डी आ और रहा कोई है। तो बताओ मेरे को। 37, सी।
सॉरी, ऑप्शन सी। सी एज इन कैलकाटा। थर्टी एट, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। 38 में पहला वाला बोलो, देगा नहीं देगा? कम ऑन, देगा। 38 देगा। फर्स्ट वन। दूसरा वाला, नहीं देगा। ये मैं कराया हूँ, ये मैं एग्जैक्टली कराया हूँ। मेरे को आइडिया नहीं था कि जेई मेंस में पूछ सकता है, मैं एडवांस के हिसाब से कराया था ये होने से, लेकिन ये होने से देगा, ये नहीं देगा। ये ओईटी होने से ये नहीं होता, याद करो मैं क्लास में बताया था, कोई भी ग्रुप अगर दाहिना बायां अगर ओईटी हो जाएगा तो नहीं देगा। ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, और ये भी देता अगर यहाँ पर मिथाइल नहीं रहता, याद है? ये थोड़ा सा जेई मेंस में भी लेवल बढ़ गया, अच्छा तक क्वेश्चन आने लग गया। ये होता तो देता, ये होता तो नहीं देता। यहाँ पर वो प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलो ठीक है, ये सब थोड़ा डिटेल में करेंगे इत्मीनान से अगले क्लास में। बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। अभी इतना हड़बड़ी करके मतलब नहीं है, हालांकि ये भी सिंपल ही है। इट कैन बी इजीली रिड्यूस यूजिंग जिंक मर्करी। ये अच्छा बात है, ये खराब बात है, ये सही बात है, ये खराब बात है? बोलो ये अच्छा, ये खराब है? बोलो ट्रू है कि फॉल्स है ये वाला? False, sir. क्यों फॉल्स है? Acid sensitive. एक्सेसिटिव है? कौन बोल रहा है ये? आई कैन हियर समबडी, एब्सोल्युटली क्लिनिकल। Crucial. यस, सॉरी, Crucial. क्रिसिल, गुड जॉब मैन। ये एसिड सेंसिटिव है तो ये ऐसे रिड्यूस नहीं हो सकता। इट्स अ बैड ऑप्शन। ऑप्शन रीजन आर सही है, मतलब ये रिड्यूस करता है, ये बात सही है, बट ये गलत है। बट ठीक है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा इत्मीनान से करते हैं, मेरे को भी लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। विल सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।